Hello class 10th. We are continuing the lesson federalism. So I have already posted 2 videos and now this is the third video. We are going to take a new topic today which is called decentralization. Decentralization. Decentralization in India. So we have noted that federal governments have 2 or more tiers of governments. 2 or more tiers of government means 2 or more levels of government. So India is a vast country and it can only be run with the help of 2 or more tiers of government. So but being a large country with a very large population and internally diverse, there is a need for power sharing within the states also. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This is rational or reasonable for decentralization of power. That is, some power is given to a third tier of government called local government. So, what is the definition of decentralization? When power is taken away from central and the state governments and given to a local government, it is called decentralization. The basic idea of decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at local level. You can understand this with a small example. There's a small boy, for example, called Ramu, and he lives in a village named X. Then when the child grows up, with the passing years, he sees there are many problems in his village. For example, in the season, the roads being temporary, or the kacha roads, they become muddy and the roads become unfit to walk. The roads become over flooded, and unless and until the water recedes, no one can go on the streets and start any day-to-day business. Or the child must have seen, apart from this problem, that there is no big ground for some exhibition or some fair to be held. So as he grows up, after 30 years or 35 years, he becomes a chairperson, or rather sarpanch of the village. Then the sarpanch comes in the local level of government. So now he can better understand the problems of his own village. So now you can understand that why a third level of government is needed. There are a large number of problems and issues which are best settled at local level. They have also, the people have better knowledge of the problems in their localities. They have better ideas where to spend money and how to manage things efficiently. So here in India, there are panchayats in the villages and municipalities in the urban areas. But these were in directly control of the governments. Election to these governments were not held. तो इसका मतलब क्या था कि काफ़ी समय तक 1992 से पहले ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट थी या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, ये केवल कागज में थी. इट वॉज नॉट वर्किंग प्रैक्टिकली. बट major step was taken
in 1992 towards decentralization. तो अब क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और एंड यू कैन सी द फॉलोइंग पॉइंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 पॉइंट्स क्या है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है कि इलेक्शंस रेगुलरली हों लोकल बॉडीज़ को। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है, सीट्स आर रिजर्व फॉर द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये कंडक्ट कराएगा पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को। उसके बाद 5th पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। कौन सी, रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट मतलब गांव वाली। ईच विलेज, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स, ठीक है, एक बड़ा सा विलेज या अ ग्रुप ऑफ छोटे छोटे विलेजेस हैज़ अ ग्राम पंचायत, वो मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत क्या है, इट इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। अब ग्राम पंचायत में बहुत से वार्ड मेंबर्स होते हैं और ये इलेक्ट करते हैं एक प्रेसिडेंट और सरपंच को। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और विलेज, it is a decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. अब ये ग्राम सभा क्या है, अब देखो, all the voters in a village are its members। मतलब क्या कि जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग रहते हैं विलेजेस में, वो जो एक ग्राम पंचायत में, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। It has to meet, it मतलब क्या हुआ, ग्राम सभा has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and review the performance of the gram panchayat. Local structure goes right up to the district level। अब ये district level तक जाता है। A few gram panchayats are grouped, थोड़ी सी ग्राम पंचायत टुगेदर ग्रुप करके क्या बनाती हैं, एक पंचायत समिति बनाती हैं, या जिसको कहीं ब्लॉक कहते हैं, कहीं मंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब मेंबर्स टू ऑफ द ब्लॉक, आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर constitute the जिला परिषद। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, ठीक है। अब देखो, मेंबर्स ऑफ द लोक सभा ऑफ MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, ठीक है। सिमिलरली लोकल बॉडीज एग्जिस्ट फॉर, इसी तरह की लोकल बॉडीज़ किसके कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, हमारे म्यूनिसपैलिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। म्यूनिसपैलिटीज़ बड़े टाउन्स में और बड़ी सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो म्यूनिसपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस दोनों, दे आर इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसपैलिटी। म्यूनिसपैलिटी का हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल पर्सन होता है। इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे अब शाहजहानपुर हो गया एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें हेड कौन होता है, मेयर होता है। अभी तक हमारी म्यूनिसिपैलिटी थी, तो हमारा जो हेड होता था वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता था, लेकिन अब हमारा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन नहीं होगा, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसलिए हमारा हेड ऑफिसर कौन होगा, मेयर होगा। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में, जो कहीं करा गया हो, वो भारत में किया गया है। 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई हैं। अब नाउ about 36 lakh representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country
ये this number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for the local government has helped to deepen our democracy. तो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी इससे डीपन हुई है, मतलब इसमें थोड़ा वेट बढ़ा है और इससे वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है और उनकी आवाज़ बढ़ी है डेमोक्रेसी में. एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज. इसके साथ साथ बहुत मुश्किलें भी हैं. जबकि अब क्या मुश्किल है, देखो, नंबर 1 मुश्किल ये है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. जबकि इलेक्शंस होते हैं लेकिन ग्राम सभा हेल्ड नहीं होती. मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, नंबर 2 क्या है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट. बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को बड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स नहीं दिए हैं. और तीसरा क्या है, और उन्होंने एडुकेट रिसोर्सेज भी नहीं दिए हैं. अभी बहुत लंबा समय है कि एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे यहाँ बने. तो आई सपोज कि वी हैव फिनिश्ड द लेसन. दिस इज़ अ वेरी important lesson, children, and I've sent you some questions. तो the questions are a little hodgepodge. मतलब कि जैसे 2015 के तो उसमें 1-2 लॉन्ग हैं, एक शॉर्ट है, एक वेरी शॉर्ट है, इस तरह. सो यू गो थ्रू ऑल द पेजेस. पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करना, देन शॉर्ट क्वेश्चंस करना और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस करना. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर टुडे. We are ending the lesson. Thank you.